welcome Anup ji and Jagdish Vyom ji is here. So they can come and tell the rules of the poem and we can start our session. Anup ji, You're muted. आप हैं? Anup ji, you're muted. I have to unmute myself. Sorry. Hi. Thanks, Kusum, and good morning to everyone. I see quite a few familiar faces. So, namaste to all. And so, let me say a few words about what we are trying to do here before we actually get to the poetry competition. So one of the things that I felt, and talking to Kusum and Mansi is there, I kind of discussed with her also. We feel that if you're teaching Hindi or any language, if we can connect the students with poetry in some way, it would help. So with that assumption, we try to bring what I'd like to introduce what we have been trying to do, and that is to teach poetry. Now, when I say teach poetry, as you know, there are two things that comes when you want to write poetry. One is, of course, your thoughts, what you want to say. And as far as that is concerned, we feel that there is not much we can teach you. I mean, the thoughts have to come from you, from within, all that. But the second part, which is if I can say, the grammar or the syntax of poetry, that is something that can be taught. And this is what we actually do. And we have Dr. Jagdish Vyomji with us. We feel that we can teach that part. And for that, we started something called Kavita Ki Pathshala. About व्योम जी कितने साल हो गए हैं हमें करीब 4 कोविड के समय हम लोगों कोविड ने के समय किया था आपने, हाँ। कोविड के समय शुरू किया था अबाउट। तो 4-5 साल से हम लोग जी कोशिश जी कर रहे हैं। और जगदीश व्योम जी हमारे उसके, मैं कहूँगा कि कविता की पाठशाला के प्रधानाचार्य हैं। गुरु जी क्या हैं। बात है। And I'm sorry, I'm going to be talking Hindi and English, and I hope and believe that most of you understand Hindi. तो हाँ बिल्कुल। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अगर कविता को सीखना चाहता है तो उसे हम कविता सिखाएं, कैसे लिखी जाती है, उसके क्या नियम होते हैं, है ना। और कविता की जब बात करते हैं तो आपको मालूम ही है कि उसमें कई विधाएं हैं। कविता आप नवगीत लिख सकते हैं, आप मुक्तक लिख सकते हैं, आप हाइकू लिख सकते हैं, आप गज़ल लिख सकते हैं। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि कविता की पाठशाला में वी पिक हर विधा को हम लोग एक एक करके लेते हैं और फिर उसमें हम लोग जो एक्सपर्ट हैं उस विधा से जुड़े हुए, तो व्योम जी हैं, व्योम जी कुछ विधाएं तो व्योम जी की ही हैं, लेकिन कुछ विधाएं हमने कुछ और भी लोगों की मदद ली जो कि उस विधा में पारंगत हैं, है ना। तो गज़ल में जैसे हम लोगों ने कुछ और कोशिश की, तो और गज़ल की जो पाठशाला है वो कुछ कुछ इस तरह से इतनी पॉपुलर हुई कि हम लोगों ने एक अलग से उसकी क्लास शुरू करी है और वो पैरेलल में चल रही है गज़ल की पाठशाला के नाम से। तो यही हम लोगों की कोशिश होती है और हम ये भी चाहेंगे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी तो सीख ही रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ लोग जो कविता को सीखने में रुचि रखते हैं उन्हें आप हमारे पास भेजिए और इट्स ऑल फ्री, देयर इज़ नो फी इन्वॉल्व। एंड वी ऑल्सो हैव अ वेबसाइट where so we do most of these things, we do it through a WhatsApp group where where the the rules of the poetry are taught,
and then you try to write the poetry, and then our teachers try to correct that, improvise that. And not only the teachers, but the other students also can make suggestions and can comment on that. So we do that all through a through the WhatsApp group, because it gives us a good interactive platform where we can react to what somebody is writing, and all that. So WhatsApp is good for instant reaction, but it's not a good place to keep things that you want to search later. So when we come to the rules of the poetry that are taught, we try to summarize them and we put them on a website. And I'll share the website with you, and you can go to that website, and you can see the whatever has been taught in the class. You can review that material, and you can learn yourself. You can ask questions. You can practice poetry the way you want it. All that. So I think that's all I have to say. And we did get a pretty good response. About 22 participants registered for this competition, and I don't know how many of them are present here. But if they are not present, I mean, of course, those who are present, we will listen to them. But those who are, if they are not here, we would simply discuss what we are trying to do, and we would like to seek your cooperation. We would like to listen to you, listen to your suggestions, how we can improve, and how we can work together in the future. So that's all I have, Kusum. And so let's take a roll call of those who are here to participate in the poetry competition. Kusum, can I say something as well from University of Hawaii perspective? So Sure, Anup sure. ji, Please. अनूप जी एंड जगदीश जी, मेरा सौभाग्य है कि आपसे यहाँ पे मैं मिल रही हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में मैं पोएट हूँ एक्चुअली, मैं कविता लिखती हूँ। I've read some of your. ओह, ओके, थैंक यू। No, I've come across somewhere. हाँ, और क्योंकि मैं शुरू से ही 101 बिगिनिंग हिंदी से ही अपने स्टूडेंट्स से भी लिखवाती हूँ। बहुत बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मैं उनके साथ जो आपने कहा करेक्शंस या सजेशंस या किसी रूपक के साथ मेटाफर सिमिली के साथ खेलना, ये बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लास में भी होती हैं। तो अगर मैं आपकी कविता की पाठशाला में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकूं तो आप मुझे बताएं प्लीज़। और मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तो कितने 5:30 बजे सुबह के, तो मेरे स्टूडेंट्स नहीं आ सके इस कंपटीशन के लिए। लेकिन अगर आखिर में टाइम हो तो मैं उनकी कविताएं और मेरी भी एक कविता पढ़ के दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो ये दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो आई अप्रिशिएट बहुत एवरीबॉडी। बहुत स्वागत है आपका, साईं। और नहीं, हम लोग मिलकर करेंगे, और ये पूरा जो काम है, ये सब वॉलंटरी वर्क है। हम लोग कर रहे हैं क्योंकि व्योम जी हमारे साथ हैं, पैशनेट अबाउट पोइट्री, और कोशिश रहती है कि जितना हम लोग जितने लोगों तक पहुंच सकें और जितने लोगों को कविता से जोड़ सकें, है ना। तो व्योम जी, मैं अब आपको आमंत्रित करूंगा, आप अपनी बात कहिए। आप म्यूट पर हैं अभी जी। जी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आज काफी समय के बाद। मुझे सुन पा रहे हैं अनूप जी? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, जी बिल्कुल। जी जी। मैं व्योम जी का मैंने और परिचय कुसुम नहीं जी, दिया, मैं बहुत एक समय के मिनट का बाद आप समय दिखाई देना दे रही चाहूंगा। हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि एक लंबे समय के बाद में फिर कविता की या और हिंदी की बात चल रही है। अनूप जी ने बहुत सारी बातें बता दी हैं पहले से ही। अ, कविता की पाठशाला चूंकि बहुत काफी लंबे समय से चलती रही है और बहुत सक्रिय रहे हैं लोग उसमें। अभी कुछ दिनों से थोड़ी सी सुषुप्त है, तो फिर से उसको जागृत किया जाए। बिल्कुल। जी जी। व्योम जी का मैंने परिचय नहीं दिया, तो हम लोग क्योंकि इनफॉर्मल ही सब कुछ चल रहा है, तो हाँ मैं। हाँ मुझे लगता है उसकी आवश्यकता नहीं है, हम लोग नहीं सब। नहीं नहीं, व्योम जी, थोड़ा तो मैं आपके बारे में बताऊंगा।
व्योम जी दिल्ली में हैं और बहुत लंबे समय तक हिंदी शिक्षण में रहे और उसके बाद प्रशासन में रहे। दिल्ली प्रशासन में शिक्षा विभाग में एक लंबे हाँ समय तक। और बहुत अच्छे नवगीत तो आपका है ही क्षेत्र, लेकिन लगभग हर हर विधा में आपने लिखा है। और हमारा सौभाग्य है कि जितनी भी हम लोगों की परियोजनाएं चली उनमें जगदीश व्योम जी का एक बड़ा हाथ रहा। जी बिल्कुल। तो अम, कुसुम यहाँ मुझे तो दिख नहीं रहे, कुछ लोगों ने कंफर्म भी किया था लेकिन पार्टिसिपेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहे हैं। साइशा है, वानी आइए, है, और चलिए। निशांत मिश्रा है। अम, अ, तो चलिए, मानसी। हाँ, है चलिए, बहुत है। बहुत बढ़िया बात। तो हम लोग इसको कुसुम ऐसा करते हैं। कुसुम जी की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी रहती है। मैं पहले भी 2-3 बार इनके स्टूडेंट्स के साथ बात कर चुका हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर सब उपस्थित हो जाते हैं और बहुत अच्छी कविताएं पिछली बार सुनाई थी। तो होंगे इधर उधर कहीं होंगे, अभी नहीं, अभी आ जाएंगे। चलिए, नहीं मुझे दिख रहे हैं। घूम तो घाम के आ जाएंगे, खेल कूद के आ बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल। वापस। नहीं दिख रहे हैं, अब आ रहे हैं। आ रहे हैं, आ जाएंगे। जी जी। तो हम शुरू कर सकते हैं, जैसे जैसे आएंगे हम वैसे हाँ वैसे। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। आएंगे और इसको ऐसा करते हैं कुसुम कि प्रतियोगिता तो हमने इसको नाम दिया है, लेकिन एक गोष्ठी इसको कहते हैं हम लोग। और ऑफ कोर्स हम लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम सर्टिफिकेट्स तो हम देंगे ही, और उस पर टिप्पणी भी करेंगे हम लोग, क्योंकि कम पार्टिसिपेंट्स हैं तो हमारे पास समय है ना। तो हाँ, मेरे बिल्कुल ख्याल से बिल्कुल। इसको फॉर्मल सभी लोग प्रतियोगिता ही कहा टिप्पणी जाए। दे सकते हैं, हाँ। तो है ना, तो इसको फिर शुरू करें कुसुम। बिल्कुल। कोई देरी नहीं तो करनी चलिए, चाहिए। इसमें फिर हम लोग ऑर्डर भी जो है, हम्म। अ, जो जिस भी ऑर्डर में, तो साइशा, मैं तुम्हें जानता हूँ इसलिए मैं तुमसे ही शुरू करते हैं। ठीक है। अपने बारे में थोड़ा सा बताओ और हिंदी में कितना तुम्हारा अनुभव रहा है, और फिर कविता, है ना। Thank you. Namaste, everybody. मेरा नाम साइशा है and अभी I stay in North Carolina. Um, Currently, हम अभी Chapel Hill में business पढ़ते हैं and I'm looking to do something in the intersection with healthcare, so something in pharmaceuticals. Hindi में I would say I'm a like native. It's almost my first language. मेरी मम्मी एकदम बचपन से हिंदी सिखाई है मुझे, so it's something that I feel more comfortable in. And अभी एक poem है called मैंने espresso मांगा था that I'm looking forward to present. So I'm going to just get started and present that poem. स्वागत मैंने है espresso, साइशा। sorry, can you hear me just fine? हाँ हाँ, बिल्कुल Okay. स्वागत है। यू वेलकम। मैंने एस्प्रेसो मांगा था, उन्होंने कैपुचिनो दे दिया। पहले मुझे लगा शायद गलती से हुआ होगा, फिर समझ आया नहीं, ये गलती नहीं थी, ये आदत थी। जैसे कड़वाहट मेरे हिस्से की चीज़ ही नहीं, जैसे तेज स्वाद मेरे लिए बना ही नहीं, जैसे मुझे हमेशा थोड़ा मीठा, थोड़ा हल्का, थोड़ा कम ही रहना है। और फिर समझ आया, ये सिर्फ कॉफ़ी नहीं थी, ये एक पूरी सोच थी जो हर जगह मेरे फैसला मुझसे पहले ही कर देती है। उन्हें लगता था मुझे पिंक पसंद होगा, गोलगप्पा गोलगप्पे मेरे सबसे बड़ी खुशी होंगी। मैं तेज़ गाड़ी नहीं चलाऊंगी, डर जाऊंगी। मैं सेफ करियर चुनूंगी, रिस्क नहीं लूंगी। मैं वायलेंट फिल्में नहीं देखूंगी, और इच्छा, वो तो मेरे लिए शब्द ही नहीं। उन्हें लगता है मैं एक बेटा चुनूंगी, क्योंकि बेटी का बोझ समझती हूँ। मैं रोऊंगी, चुप रहूंगी, और आखिरी वक्त में चिता को आग देने के लायक नहीं समझी जाऊंगी। हर बार मेरे लिए एक कैपुचिनो तय कर दिया जाता है, बिना ये जाने कि मेरे अंदर कितनी कड़वाहट सहने की ताकत है।
जैसे मैं कोई हल्की सी चुस्की हूँ, जबकि मैं तो उबलती हुई चाय भी हूँ, कड़क एस्प्रेसो भी, और कभी कभी वो आग भी जिसे छूने से लोग डर जाते हैं। मैंने एस्प्रेसो मांगा था, पर मुझे हमेशा समझाया गया कि कैपुचिनो ही मेरे लिए सही है, क्योंकि दुनिया को औरतें मजबूत नहीं, मुलायम ही अच्छी लगती हैं। और फिर वही दुनिया कहती हैं, औरतें बहुत भावुक होती हैं। हाँ, होती हैं, क्योंकि बचपन से हर मोड़ पे उनकी पसंद सुधारी जाती है। क्या पहनना है, क्या कैसे बैठना है, कितना बोलना है, किस समय लौटना है, किससे प्रेम करना है, कौन से सपने देखना ठीक है। और सबसे अजीब बात, ये बातें सिर्फ अजनबी नहीं करती हैं। कभी परिवार, कभी दोस्त, कभी शिक्षक, और कभी कभी औरतें भी दूसरी औरतें से यही कहती हैं। मैंने एस्प्रेसो मांगा था, और अब मैं अपनी आवाज़ भी उसी एस्प्रेसो की तरह रखूंगी, गहरी, तेज, थोड़ी बिटर, पर सच्ची। इस बार मैं सिर्फ प्याली नहीं उठाऊंगी, मैं सवाल भी उठाऊंगी। तुमने तय कब किया कि मेरे पसंद क्या होनी चाहिए? And that's the poem. Thank you. बहुत खूबसूरत साइशा। Thank you. ठीक है, तो अब हम अपने क्या हम अभी बातचीत करेंगे या पहले सबका सुन लें? आम कुसुम, मेरे ख्याल से अभी अगर इस पे बात कर लें तो सबको याद भी रहेगी पोयम। थोड़ा सा हम कर तो सकते हम हैं। लोग कम ही लोग हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, है ना? हम्म। तो व्योम जी, आप कहना चाहेंगे इसके बारे में, कविता के बारे में? बड़ी हाँ मुझे बिल्कुल मौलिक बिल्कुल बिल्कुल, कविता और मुझे लगी लगता जी। है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कम है बच्चे या पढ़ने वाले। तो उसके बाद में फिर कविता फिर भूल जाते हैं क्या क्या कहा था, जी क्या आधी जी जी बातें जी भूल जी। जाते हैं। ये साइसा का परिचय क्या है, थोड़ा सा दें। मैं नाम सही ले रहा हूँ कि नहीं? नहीं, नाम सही है। नाम सही है। कहाँ पढ़ते हैं बेटे आप? अभी मैं चैपल हिल में बिजनेस स्टूडेंट हूँ, एंड किसी बिजनेस के साथ थोड़ा सा हेल्थ केयर का भी आई वांट टू हैव सम रिलेशन, तो दैट्स द करंट गोल। वेरी गुड। आपने तो इतनी अच्छी कविता लिखी है कि लगता ही नहीं कि कोई स्टूडेंट्स ने कविता लिखी है। आपने ही लिखी है कविता? जी, और मेरी मम्मी भी मुझे बहुत एडवाइस दी बहुत अच्छी कि कविता है कैसे ये। इसको ठीक जो से ग्रामेटिकली हम्म, उसका बेस्ट मीनिंग रहे। पूरे उसमें जो आपने शब्द चयन किया है, बहुत अच्छा है। किस भाव के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी। किस भाव एक्सप्रेशन के कौन सा शब्द चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है हर एक भाषा में, चाहे वो हिंदी हो या दूसरी भाषाएं हो। तो वो आपका चयन बहुत ही अच्छा है। और जो नारी संवेदना की जो गहराइयां हैं, उनको आपकी कविता बहुत सारा स्पर्श करती है। मैं तो यही कहूंगा कि आप ऐसे लिखती रहें। हैं? बहुत अच्छी कविता है। बहुत सारा आशीर्वाद आपको। थैंक यू। जी अनूप जी। हाँ नहीं, बहुत मैं थोड़ा सा बता दूं, सायशा को मैं पर्सनली भी जानता हूं। इनकी मम्मी मयूरी जो हैं वो हिंदी की बहुत सी परियोजनाओं से जुड़ी हैं, तो हिंदी अरे का वाह। माहौल है, मिला है इनको जी घर जी में। जी, बहुत तो अच्छी और कविता है। वो दिख रहा है कविता में भी। Yeah, बिल्कुल। I'm very lucky to have like my mummy बहुत is integrated into the cultural and literature arts, so to have that exposure and surrounding is really helpful. और जब मैंने आपकी कविता सुनना शुरू किया, मुझे लगा कि ये एक्सप्रेसो के बारे में है, लेकिन आपने बहुत नहीं छुपा वो दिया। और वो एक्सप्रेसो के बारे में ना रह करके, वो उसको जिस तरह से एक्सप्रेसो को एक तरह से आपने दृष्टांत लेकर के और जैसे बात की है, वो काबिल तारीफ है। बहुत सुंदर। थोड़ा डायस्पोरा आ गया कुसुम Thank दीदी पूरा में। का you. पूरा इन्होंने हाल बेटी बिल्कुल होना बिल्कुल और बिल्कुल वो बिल्कुल। पूरा उन्होंने उसको लेके आ गई, तो ये बहुत सुंदर कविता है। और
बहुत अच्छी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ठीक है, अब तो हम लोग, हम, हाँ कुसुम शुरू प्लीज। मुझे लग रहा है कि अब मैं जो देख रही हूँ अपने उससे, मैं उसी लिस्ट से जा रही हूँ जिस जी लिस्ट जी। से देख रही हूँ। तो मैं ऋत्विक अग्रवाल को देख रही हूँ अगला। तो जी नमस्ते। नमस्ते ऋत्विक, आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए और उसके जी बाद अपनी कविता सुनाइए। जी बिल्कुल। मेरा नाम ऋत्विक है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में पढ़ता हूँ। मैं केमिस्ट्री मेजर हूँ। अभी मुझे आगे डॉक्टरेट की पढ़ाई करनी है, तो गोल्स टू गो टू मेड स्कूल। पर अभी आज जो कविता मैं लेकर आया हूँ, मैं लिखी नहीं है, पर हरिवंश राय बच्चन जी की पद की पहचान कविता सुनाने जा रहा हूँ। अ, ये कवि ये कविता जीवन को एक यात्रा मानती है, और कवि हमें ये सलाह देते हैं कि आगे बढ़ने से पहले अपने लक्ष्य और रास्ते की पहचान अवश्य कर लेनी चाहिए। तो आइए सुनाता हूँ पथ की पहचान। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। बहुत अच्छे। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी घवर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यंत्र भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के नियल में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, त्रिकोणों में दीप्ति आती। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। रख दी तो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। कंटकों की इस तरह अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छी कविता का। सुंदर। तो या तो कविता का चयन मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हरिवंश राय बच्चन की और कविताएं बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये मैंने हाँ हाँ। कभी नहीं सुनी थी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे कुछ नया सुनने को मिला। नहीं तो सब लोग वही रिपीट करते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग जानते बिल्कुल हैं। अ, बिल्कुल। तो नहीं नहीं बिल्कुल। तो ऋत्विक कितने साल से सीख रहे हो हिंदी? हाउ लॉन्ग यू बीन? हिंदी तो बचपन से ही सीख रहा हूँ। घर पे हम हिंदी ही बोलते हैं। जी। पर मैं किंडरगार्टन या फर्स्ट ग्रेड से हिंदी की कक्षाएं में जा रहा हूँ। और मतलब हाई स्कूल में मैंने सीलो बाय लिटरेसी का भी एग्ज़ाम दिया था। जिस कक्षा में मैं हाई स्कूल में था उसके उसमें दिया था। और
उन ग्रुप के साथ अभी भी मैं कनेक्टेड हूँ, तो बहुत इसलिए अच्छे। मुझे ये अ, तो कविता सीखना भी चाहोगे, लिखना खुद? जी। तो जी कविता की पाठशाला से जुड़िए और बिल्कुल। यही करते हैं हम लोग वहाँ पे। तो लर्न टू राइट ऑल्सो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत धन्यवाद ऋत्विक। और अब मैं देख रही हूँ आर्यवर्धन अग्रवाल, जो ड्यूक यूनिवर्सिटी से हैं। तो वो आएंगे और वो अपनी कविता पढ़ेंगे। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा अभिवादन। मेरा नाम आर्यवर्धन अग्रवाल है। मैं, जैसा कि मैम ने कहा, मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मैं फ्रेशमैन हूँ। और हिंदी मेरी मातृभाषा होने के साथ साथ मेरी प्राथमिक भाषा भी है, क्योंकि मैं इंडिया में ही पला बड़ा हूँ। यहीं पर मैंने अपना हाई स्कूल एजुकेशन भी ख़त्म किया है। तो मैं एक स्वलिखित स्वरचित कविता का आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने लिखी थी कोविड दौर के दौरान, क्योंकि आज सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक अपेक्षाएं इतनी बढ़ चुकी है। तो ये उसी के बारे में है कि एक बच्चा, एक बालक कैसे उन अपेक्षाओं को मैनेज कर रहा है। वो बालक कैसे इस भेड़ चाल की दुनिया में अपने आप को नेविगेट कर रहा है। तो आप सभी की आज्ञा से। स्वागत है। शाम का अंधकार छा गया, परिंदा भी थक हार कर घोंसले में आ गया। पर ये बेचैन मन फिर सोच में पड़ गया। एक मंजिल थी, एक मंजिल थी, रास्ता तो निकल ही आता। जुनून था, पर अब बस एक ख्वाब ही रह गया। देखे कई थे सपने सुनहरे, कुछ थोड़े मीठे थे और कुछ वास्तविकता सिखा बैठे। कहते हैं सोचोगे बड़ा तो ही करोगे बड़ा, बस आसमान छूने के लिए धरती न छोड़ना। कहते हैं जान है तुझमें तो कर डाल, लेकिन कोशिश करने से पहले हार ना मान। कहते हैं शिकस्त नहीं, ये खौफ है तेरा, तू मंजिल की ओर कदम तो बढ़ा। जीत फिर खुद तेरे पीछे आएगी। रात का सपना दिन की सच्चाई बना, हदें पार हो जाएंगी, हदें पार हो जाएंगी। रात का सपना दिन की सच्चाई बनाने का प्रयास था। एक मंजिल थी, एक मंजिल थी, रास्ता भी निकल ही आता। जुनून था, पर अब बस एक ख्वाब ही रह गया। खूब कोशिशें की थी इस रूह ने, नहीं बन पाया ये सबका आदर्श, नहीं बन पाया ये समाज का सिद्ध पुरुष, नहीं बन पाया वो कोई सत्काम। पर हाँ, संघर्ष नहीं छोड़ा था इसने, हार न मानी थी इसने। कहता ही रहा खुद से सदा, मुस्तकबिले वतन है तू, देश को बढ़ाना है, कुछ कर गुजरने का जुनून अपने दिल में जगाना है। ये धरती है जिस पर माँ दुर्गा का वरदान है, ये भूमि है जिस पर श्री राम का इतिहास है, ये मिट्टी है जिस पर वीरों के शीश कुर्बान है। जहाँ शौर्य है वहीं असीम आसमान है, जहाँ संस्कार है वहीं माँ का अभिमान है, जहाँ मंजिल है वहीं रास्ता है, जहाँ जुनून है वहीं ख्वाब हकीकत है, जहाँ जुनून है वहीं ख्वाब हकीकत है। मौत तो सबको नसीब होती है, हम इंसान भी नश्वर होते हैं। पर यम के उस मृत्युदूत के आने से पहले उस आग को कभी बुझने न देना, उस आवाज को कभी अनसुनी न करना, उस ख्वाब को कभी टूटने न देना। क्योंकि मंजिल है तो रास्ता भी निकल ही आएगा, जुनून है तो ख्वाब भी हकीकत में बदल ही जाएगा, जुनून है तो ख्वाब भी हकीकत में बदल ही जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे लगा आप एक और भी कविता है आपकी, या एक ही है? नहीं। एक और भी मैंने लिखी थी, वो भी मैं सुना सकता हूँ मैम, आपकी आज्ञा से। जहां लोग रंग से नहीं अपने ढंग से जाने जाए, जहां लोग रंग से नहीं अपने ढंग से जाने जाए, जहां लोग नाम से नहीं अपने काम से जाने जाए। करे निर्माण एक ऐसी सृष्टि का, जहां लोग धर्म से नहीं अपने कर्म से जाने जाए। जहां सच एक मोती के जैसे चमके, जहां झूठ को कुचल दिया जाए, जहां सत्य बादल की तरह गरजे, जहां असत्य पाप कहलाया जाए। करे निर्माण एक ऐसी सृष्टि का, जहां बच्चा बच्चा निडर होके चले, गूंजे मन में यही बात की डर के आगे जीत मिले। जहां स्वतंत्रता जन्म से अधिकार हो, जहां महिला पुरुष से कम ना हो, जहां हिंदू मुस्लिम सिख हो या ईसाई वो नाम से अलग पर दिल से एक हो। करे निर्माण एक ऐसी सृष्टि का, चाहे रंक हो या राजा, आजाद रहे हर एक किनारा। करे निर्माण एक ऐसी सृष्टि का, जहां धरती को भी मां माना जाए। करे निर्माण एक ऐसी सृष्टि का, जहां पेड़ को भी इंसान माना जाए। करे निर्माण एक ऐसी सृष्टि का, जहां काला हो या गोरा सब एक माने जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छे आर्यवर्धन। दोनों ही बड़ी मौलिक कविताएं हैं। और तुम्हारी जो पीढ़ी है उसकी जो एक जो व्यथा जो चल रही है पीढ़ी में, जो उसको बड़े खूबसूरती के साथ तुमने बयान किया है। बहुत बहुत
बहुत अच्छी। बहुत अच्छी कविता आर्यन ने प्रस्तुत की। और खास बात ये कि आर्यन के जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत अच्छा है, हम्म। बहुत ही बढ़िया। और इससे पहले जो ऋत्विक सुना रहे थे हरिवंश राय बच्चन की कविताएं, हरिवंश राय बच्चन ने दो तरह की कविताएं लिखी हैं कुछ, क्योंकि उस समय वो मंच पे बहुत छाए हुए थे। और उसके बाद जो उनकी गंभीर कविताएं, तो चयन बहुत अच्छा था। सकारात्मक सोच की कविता थी ऋत्विक ने जो पढ़ी बच्चन जी की। और आर्यन ने तो बहुत ही बढ़िया कविता, उसी से उसी कड़ी से कड़ी मिलाते हुए, यानी सकारात्मक सोच इसमें भी है, संघर्ष की बहुत सारी बातें इस कविता में की। तो निरंतर आप लिखते रहिए, जैसा कि अनूप जी कह रहे हैं कि, और अ, पाठशाला से जुड़िए अगर नहीं जुड़े हैं तो। और कुसुम जी, बहुत बढ़िया आप ये जो नस्लें तैयार कर रही हैं साहित्यकारों की। बहुत अच्छा, पहले भी आपका जो कार्यक्रम रहे हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रस्तुतियां रही कविताओं की। तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई भाई आर्यन जी। थैंक यू। तो क्रिस वेगा को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। Hello. हेलो। Uh, Namaste. नमस्ते। नमस्ते मैं क्रिश। नाम क्रिस है। मैं Wesleyan University में छात्र हूँ। Um, and I've only been learning Hindi for 4 semesters now. So I'm basically a beginner. um, I got into it because of my best friend. He's Punjabi, and he speaks both. Um, Punjabi and Hindi, and he said he would learn Hindi, or I would learn Hindi for him, and he would learn Spanish for me. So you know, it's a cool exchange that we have between each other. Um, so the poem today that I'll be reading is called "Na kisi ki aankh ka noor hoon, na kisi ki dil ka karar hoon" by Mustar Kharabadi. Um, Okay, and I'll start. Um, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करा हूँ। किसी काम में जो ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। ना दवा ए दर्द ए जिगर हूँ, मैं ना किसी के मीठी नजर हूँ। मैं न इधर हूँ, मैं ना उधर हूँ। मैं ना शकीब हूँ, ना करार हूँ। मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया हूँ जो किसान से बाग उजड़ गया मैं, उसी की फसलें बहार हूँ। वाह। पाए फातिहा कोई आ, आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों। क्यों। आ, कोई आके शाम जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मजार हूँ। न मैं लग हूँ, ना लगाव हूँ, ना सुहाग हूँ, ना सुभाव। जो बिगड़ गया वो बना हूँ, जो नहीं रहा वो सिंगर हूँ। मैं नहीं हूँ नगमा ए जन फाजा मुझे सुन के कोई करेगा क्या। मैं बड़े अ, बिरोगी हूँ, सदा मैं बड़े दुखी की पुकार हूँ। ना मैं मुस्तर उनका हबीब हूँ, ना मैं मुस्तर उनका रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दायर हूँ। And that's the end. बहुत बहुत Um, अच्छे, बहुत अच्छे क्रिश। but yeah. तो Chris, what हमने does इसे this poem mean to हिंदी you? उर्दू पोइट्री दिया था शीर्षक, तो उर्दू की भी जरूरत थी, और उर्दू। तुमने पूरी कर दी उसको। तो
Chris, what does this poem mean to you? I think it has a lot of meaning to me. It was the first poem that was introduced to me by my best friend, and Okay. it does explain a lot about just the sadness and the loneliness that I think the author wanted to share through the poem. I guess a little bit about what how he felt disconnected from both people and life, and I think it's just a very overall strong and emotional poem. As a language learner, do you have a word or phrase that from this poem that particularly touched you? Um, I think the word, maybe not necessarily from the poem. If I had to say something that did resonate with me, like after reading it, I think love, or pyar, I believe is what it's called, is something that's really important. And yeah. Yeah, and have you ever heard this song? Like it is a movie. It was included in a movie. Mohammad Rafi, the famous Hindi singer, has sung it Correct. I haven't seen very it. beautifully. So you must listen to it. It's really good. कौन सी मूवी में है स्वप्न जी? कोई बहुत पुरानी मूवी है ना, पर मोहम्मद रफी ने, क्योंकि मुझे गाया बहुत सुंदर है। गाने का शौक है, इसलिए मुझे अच्छा, वो याद था क्योंकि कि ये हम इसे बहुत गाते हैं ना किसी की आँख का नूर अच्छा हूँ। प्यासा मेरा नहीं नहीं, नहीं, प्यासा प्यासा में तो नहीं, नहीं ये है। ऐसा नहीं है, प्यासा कोई नहीं है। राजेंद्र मुगल कुमार याद मूवी आ रहा है। थी बहुत पुरानी, अच्छा मुझे राजेंद्र नाम कुमार देखना एक्टर याद आ पड़ेगा। रहा है हाँ, इसके ऊपर। हाँ कुसुम दीदी टाइटल क्या है इस कविता का? बिकॉज आई एम गोना गूगल सर्च इट ना आई किसी लव की द आँख का ए, नूर हूँ, यही है इसका। oh not okay ना okay किसी के दिल I'm का। because I आ, love that the words are amazing for the वो Hindi बहुत फेमस है Urdu मोहम्मद रफी का, बहुत yeah. ना ये किसी yeah, ना न किसी किसी की आंख का नूर हूँ। ये ये बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की बहादुर है। शाह जफर की बहुत प्रसिद्ध कविता है। जब वो जेल में बंद थे उस समय उन्होंने बिल्कुल लिखी थी, बिल्कुल न बिल्कुल। किसी की आंख का नूर है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता, फिल्मों में कई nine, लोगों ने इसको लिया है। It's बाकी 1960 in कृष्ण ने Lal इसको Qila. हाँ The लाल movie is किला Lal लाल Qila. किला में होगा, मैंने देखी नहीं ये मूवी, पर गाना सुना है। और Yeah. 1960 हाँ, की बहुत है बहुत प्रसिद्ध कविता है। जफर जी, बहादुर शाह जफर जी जफर का, की ये हाँ। कविता है। हाँ, जफर की है कविता। वाह बहादुर शाह जफर द मुगल बहादुर एम्पायर शाह जफर की, जब वो बंद थे तो उस समय लिखा था। बड़े दर्दनाक उसका दयार करते हैं, उदासीनता की कविता है, लेकिन कृष्ण ने इसको चुना और प्रस्तुत बहुत बढ़िया किया। बहुत अच्छा। इसलिए बहुत और अच्छा। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड उर्दू पोइट्री भी है, वो चुना है उन्होंने। हाँ, अरे जफर साहब दैट्स की बहुत, बहादुर वंडरफुल। शाह। I found it on रेख्ता रेख्ता पर है। या हिंदी भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो अच्छा ये हम लोग वो हर इसको, जगह है, बहुत मतलब ये हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। बहुत हाँ, इसको सबने रेख्ता सुना में ही है, होगा। कविता कोश में है, बहुत सारी जगह है। तो मैं, क्योंकि समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है, तो मैं अब आगे बुलाना चाहूंगी कृष्णा भिंगरादिया को। वो आए और अपनी कविता पेश करें। हाय, हाँ, नमस्ते। आप अपना नाम पहले बता दीजिए ताकि। कृषा, कृष्णा, ओके। कृषा, कृष्णा, या ओके, कृष्णा, ओके, कृष्णा। हाँ। तो मैं कृष्णा अब शुरू कीजिए। पोएट्री। पहले अपना थोड़ा सा परिचय बताइए और उसके बाद ये बताइए कि आपकी अपनी है या आपने किससे ली है, उसका नाम, हाँ, कवि का नाम, और फिर आप सुना सकते सो मैं अभी फ्रेशमैन हूँ, लाइक मैं पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मेरा इंटरनेट मेजर फाइनेंस है और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, बट आई एम फ्रॉम गुजरात स्टेट, सो लाइक हिंदी इज़ माई सेकेंड लैंग्वेज, so like Gujarati is my first language, but I do know Hindi, and like I used to sometimes just write poetries like just randomly, and then I just got to know about this. So yeah, it's मैंने खुद ने लिखी है ये। सो मैं शुरू करती हूँ कि दिल करता है एक आखिरी खत लिखूं, तुम्हारे बारे में हर एक बात लिखूं, तुम्हें हर एक लफ्ज में लिखूं, पर क्या लिखूं? कि अब तुम मेरे नहीं हो सकते ये लिखूं, या तुम पहले भी नहीं थे मेरे ये लिखूं?
तुम्हारे बिन पहले सब अधूरा लगता था, ये लिखूं, या अब तुम्हारे बगैर ही सब सही लगता है, ये लिखूं। अब तुमको मैं याद नहीं आती, ये लिखूं, कि अब मैं तुमको भूलना चाहती हूँ, ये लिखूं। और अब तो मानो जैसे तुम कभी हकीकत लगते हो तो कभी ख्वाब लगते हो, कभी मेरे तो कभी अजनबी लगते हो। पर तुम कभी मेरे थे ही नहीं, तो तुम्हें खोने का डर क्यों था? तुमने कभी साथ निभाने के वादे किए ही नहीं, तो वादे टूटने का गम क्यों था? क्या बात है। कहा था तुमने कभी मुझसे उम्मीद ना रखना, तो उम्मीदें बिखरने का डर क्यों था? बहुत अच्छे। लेकिन फिर भी अब रात को तुम्हारा इंतजार रहता है। ना जाने क्यों अब तुमसे बात नहीं होती, तो मानो ऐसा लगता है जैसे रात के बाद सुबह ही नहीं होती। क्योंकि बात तो यही है ना, कि तुम्हारे आने से तो मेरी रात भी सुबह लगती थी। माना सोच लिया था अब नहीं होगा देर रात तक इंतजार तुम्हारा। पर अब तुम्हारे इंतजार में किताब के पन्ने खोलती हूँ, अनकही बातें लिखती हूँ, जो कहनी चाहिए थी तुमसे वो भी हर रोज किसी पन्नों में बयां करती हूँ। क्योंकि पहले तो बातें और मुलाकातें दोनों हुआ करती थी। अब जैसे मुलाकातें बंद सी हो गई है, और मानो बातें कम सी हो गई है। और जब तुम थे तब बारिश खुशहाल आती थी, अब जब तुम नहीं हो तो मानो बारिश तूफान लाती है। और अभी तो रात बाकी है, अभी तुमसे बात करना बाकी है, तुम्हारा मेरे सपनों में आना बाकी है। हम दोनों का हाथ में हाथ रखकर साथ चलना बाकी है। तुम्हें मुझे तुम्हारा कहना बाकी है। मैं बस तुम्हारी हूँ, मेरा जिक्र करना बाकी है। तुम बस मेरे हो, वो तुम्हारा मुझे मेरे सपनों में कहना बाकी है। और इन सब में तुम्हारी याद भी कमाल करती है। ना तुम्हें मिलने की उम्मीद करती है, ना तुम्हें भूलने की इजाजत देती है। और फिर वो आया मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह, जैसे वसंत में बरसने वाला सावन, जैसे अंधेरी रात के बाद का सूरज। ना तो तुम्हें खबर थी कि अनजाने में तुमने क्या किया, ना तो मुझे खबर हुई कि अनजाने में तुमने मेरा दिल बना लिया। नहीं आए थे तुम टूटे दिल को जोड़ने, पर तुम्हारे होने से ही सब भुला गए। एक मुस्कुराहट से मेरा दिल चुरा लिया, और एक बस एक झलक से पूरा चैन छीन लिया। जो कहती थी जो कहती थी कि नहीं होगा किसी और से लगाओ, उसी को खुद से इतना अनजाने में मना लिया। तुम आए मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह। That's it. Thank you. हम सोच रहे थे कि अभी रुके रहे, थोड़ा और आ रही है और भी बहुत सुनाई सुनी। तो बहुत अच्छी कृषा, आप बहुत अच्छी कविता लिखती हैं, और ऐसा लगा जैसे आपके खुद के मन के भाव आ रहे हैं, और कोई था जो चला गया और कोई आया, तो मतलब इसमें दोनों भाव है, एक उदासी का भी है और एक खुशी का भी भाव आ रहा है। बहुत सुंदर आपने कविता लिखी, और बहुत आशा वाली कविता लग रही है ये। Thank बहुत you. सुंदर। नहीं, बहुत अच्छा द्वंद्व जो कहना चाहिए कविता में उभर के आ रहा है, कि बिटवीन द टू, द रियलिटी एंड द द खुद ही से दोनों तरफ का डायलॉग, दोनों दोनों तरफ का तरफ का संवाद डायलॉग। जैसे। Thank you. तो कृषा, अगर कविता को सीखना है तो कविता की पाठशाला से जुड़िए। हाँ, मैंने सुना तो मैं सोच ही रही हूँ अभी, मतलब मुझे पहले नहीं पता था, तो बट आज आपको मैंने मैं सुना। लिंक भेज दूंगी, जो हाँ। लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो उससे जुड़ जाएंगे। ओके। और मैंने चैट बॉक्स में कविता की पाठशाला जो हमारी वेबसाइट है उसका मैंने लिंक डाला है, तो उसको आप देखिए। तो उसमें हमने कहा जो हमने पाठशाला में पढ़ाया गया है उसका जो एसेंस है, जो रूल्स हैं कविता के, जो नियम हैं उसके, ग्रामर, सिंटैक्स, वो सब उसमें आपको मिल जाएगी। ओके। बहुत अच्छा। और कृषा, अभी राजीव रंजन जी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि आपका अंदाज जो कहने का है वो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। तो बहुत बहुत अच्छा। और अगर व्योम जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे निशांत की तरफ। बहुत अच्छी कविता। और सही आपने कहा कुसुम जी की, वो ऐसा लग रहा कि मन के भाव, और कविता में होते भी हैं, मन के ही भाव होते हैं। जब हम के मन के भावों से दूर भटक करके कहीं से पकड़ के कविता लाते हैं,
तो वो थोड़ी सी दूर दूर की कविता लगती है, लेकिन जब मन की संवेदनाओं को, मन के भावों को कविता में पिरोते हैं तो वो अपनी सी लगती है। बहुत अच्छी कविता, बहुत सारी शुभकामनाएं, लिखती रहिए बेटे आप। थैंक यू। हाँ, ये कोई भी इसको अपना सकता है क्योंकि ये सबके मन के द्वंद हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ जा रही है और किसी की भी मन की उद्गार हैं ये। तो हम आगे चलते हैं, निशांत मिश्रा को बुलाते हैं मंच पर। और निशांत जी, जी नमस्कार। नमस्ते। आप अपना जी परिचय दीजिए और फिर बताइए कि ये कविता स्वरचित है या किसी कवि की है, और फिर अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। जी नमस्कार आप सभी को। मैं निशांत मिश्रा, और मैं इस समय पेंसिल्वेनिया राज्य विश्वविद्यालय में हूँ, जहाँ पर कि मैं खनिज अभियांत्रिकी पढ़ता हूँ। और हिंदी मेरी मातृभाषा है, और उसी परिचय के साथ मैं इस गोष्ठी में आया हूँ। ये जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये मेरी स्वरचित कविता है, जिसे आज से 5 वर्ष पूर्व मैंने रचा था। कविता उल्लाला छंद में लिखी गई है, और कविता का शीर्षक है प्रिया विफलता। जहाँ पर कि प्रिया विफलता अर्थात विफलता को एक प्रेमिका के रूप में दर्शाया गया है। तो ये कविता है, उल्लाला छंद में मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो प्रेमी अपनी विफलता से बात करता है अपनी प्रिया से कि द्वेष निखिल संसार करे पर मनुज एक ने ही तेरा। उस विफलता से सभी द्वेष करते हैं, पर एक मनुष्य उससे प्रेम करता है। द्वेष निखिल संसार करे पर मनुज एक ने ही तेरा, आदि में तुझसे भागा था, हुआ अंत प्रेमी तेरा। प्रारब्ध नहीं मिलन अपना। लोगों को लगता है कि विफलता दुर्भाग्य से मिलती है, पर ऐसा नहीं है। जो प्रेमी है वो कर्म करता है तब विफलता मिलती है, आलसी को क्या विफलता। तो प्रारब्ध नहीं मिलन अपना, आ गूढ़ तुझे बताऊं मैं, आजा मेरी विफलता, आ तुझको अंक लगाऊं मैं। और और विफलता से प्रेम कैसे हुआ, वो अगले परिच्छेद में वो बताता है कि प्रेमी अवरोध कठिन कर्म करता है, अवरोधों से भिड़ता है। और जब आप अवरोधों से भिड़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। पर जो प्रेमी है वो फिर उठ जाता है, फिर भिड़ता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। तो अवरोधों से भिड़ते और गिरते, गिराकर उठते। अवरोधों से भिड़ते और गिरते, गिराकर उठते, इतनी हुई भेंट हमारी, लगाव हो गया तुझसे। यह तेरा मेरा संबंध अब ना और छिपाऊंगा, कर गहते तेरा रागिणी, अब ना तनिक लजाऊंगा। अब वो खुले में सबसे बोलता है कि मैं विफलता का प्रेमी हूं, मैं विफलता प्राप्त करता। कर गहते तेरा रागिणी, अब ना तनिक लजाऊंगा। फिर बड़े दिनों से विफलता मिली नहीं प्रेमी को, तो प्रेमी उसके घर पहुंच जाता है और उसके घर के सामने खड़ा होकर बोलता है उससे कि हूं तुझे अपनाने आया तेरे भवन कपाट पर। हूं तुझे अपनाने आया तेरे भवन कपाट पर, नाम प्रिय अंकित तेरा मेरे भाल ललाट पर। एक विफल व्यक्ति को लोग उसके माथे में भी विफलता लिखा देखते हैं। तो हूं तुझे अपन तेरे भवन कपाट पर, नाम प्रिय अंकित तेरा मेरे भाल ललाट पर। अपनी प्रेमिका से वो बोलता है कि मेरे रक्त में मेरी त्वचा फाड़ के दिखा दूंगा तो तू ही दिखेगी, इसलिए आजा मेरे साथ। मेरी सुख चिंता में भी अब बहे विफलता धारा, शोणित में बसी तुम्ही हो, उर्मे वास तुम्हारा। मेरी सुख चिंता में भी अब बहे विफलता धारा, शोणित में बसी तुम्ही हो, है उर्मे वास तुम्हारा। ना हो यदि विश्वास तुझे आ, अजिन चीर दिखाऊं मैं, आजा मेरी विफलता, आ तुझको अंक लगाऊं मैं। और अंतिम परिच्छेद है इस कविता का, जिसमें कि विफलता के सद्गुण बताए गए हैं कि विफलता जो एक अहंकार हो जाता है व्यक्ति को, उसे तोड़ देती है। जब विफलता होती है तो आप नए प्रकार से किसी समस्या पर विचार करते हैं इत्यादि। तो वो बोलता है कि हे विफलता, इसलिए आजा मेरे पास। तो क्या बोलता है, आलिंगन असफलते, आलिंगन असफलते, आलापन कर विश्वास दे। आलिंगन असफलते, आलापन कर विश्वास दे, मदा विजय की तोड़ कर दे भद्र बोध, नव सार दे। भद्र बोध होता है जब विफलता हो जाती है, तब एक शुद्ध एक नया विचार आता है। मदा विजय की तोड़ कर दे भद्र बोध, नव सार दे। अरे तुझसे करूं स्नेह तभी तो, लौह चने चबाऊं मैं, आजा मेरी विफलता, आ तुझको अंक लगाऊं मैं।
और इसी के साथ कविता अंत होती है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत वि, सुंदर कविता। विफलता को अंक लगाना एक बड़ी अच्छी नई बात है। सफलता को तो विफलता भी सब, सफल हो गई। कविता सफल हो गई। नहीं, विफलता सफल हो गई क्योंकि उसको विफलता किसी सफल ने। हो गई, कविता सफल हो गई। बहुत बढ़िया। निशांत, आप कहीं और पढ़ते हैं कविता, किसी और संगोष्ठी वगैरह में? जी नहीं, मैं प्राय अपने ही आप में लिखता हूँ। कभी अच्छा। ऐसे कोई मिल जाए ऐसे गोष्ठी कहीं पर प्रस्तुत हम्म। करने का अवसर तो मैं चला जाता हूँ, कभी नहीं छोड़ता। और तो, तो ऐसे बस नहीं चले लिखता। आया कीजिए, कभी मत छोड़ा कीजिए, अरे हम हाँ। हमारी कविता की पाठशाला में भी जुट कहाँ जाइए। बताया अब निशांत, कहाँ रहते हो तुम? जी पेन। मैं ये स्टेट कॉलेज में रहता हूँ, पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया में। तो पेंसिल्वेनिया यहाँ स्टेट। पर ऋतु जयकर जी हैं, ओके, जिनके द्वारा हम्म। मुझे इसका ओके, पता चला था। अच्छा, तो रितु जी आई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ना निशांत भाई, मैं भाषा वैज्ञानिक हूँ, तो मुझे साहित्य का ज्यादा मालूम नहीं है, तो मैं बहुत बड़ा शून्य हूँ मुझे लगता है साहित्य में। लेकिन सुनता रहता हूँ, और आपके अंदाज से लगा कि आप बहुत जैसे जैसे समझा के आपने बताया ना, इसलिए मैंने कमेंट में भी लिखा कि शब्दकोश की जरूरत पड़ेगी मुझे इसको समझने के लिए भी। तो बहुत खूबसूरत था, आई रियली लाइक दैट। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ें कुसुम। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद निशांत के बाद मैं देख रही हूँ, साइशा का हो गया। वानी गुप्ता जो हमारी आखिरी वक्ता होंगी। नमस्कार। मेरा मुस्कुराहट भरा अभिवादन स्वीकार करें। मेरा नाम वाणी है। मैं भी पेन स्टेट की छात्रा हूँ। यहाँ पर शोध के प्रोग्राम में हूँ, पीएचडी प्रोग्राम में। अम, और शोध जो है एक गंभीर कार्य है। आप सभी अपने जीवन में ऐसे ही गंभीर कार्यों में व्यस्त रहते होंगे। तो पर इन सब व्यस्तताओं के बीच जो खो जाती है, वो अक्सर मुस्कुराहट है जो कि खो जाती है। अम, और मुस्कुराहट शब्द जब भी मैं सोचती हूँ तो मन में कई सारी छवियाँ आती है। आपके मन में भी कई छवियाँ आती होंगी। अ, परंतु मुस्कुराहट का वास्तविक अर्थ क्या है, यह समझना मुझे कठिन कठिन प्रतीत होता है। तो आज मैं अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से इसी इसी का अर्थ जानने की कोशिश कर रही हूँ। और वही इन छवियों और प्रश्नों के माध्यम से इसको प्रकट करूंगी। तो इस कविता का शीर्षक है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट क्या है यह? किसी का नाम है क्या, या कोई इमारत है यह? तो पहला प्रश्न यही आता है कि क्या ये किसी का नाम है? आजकल लोग नाम रखते हैं, मुस्कान, हर्ष। तो मुस्कुराहट किसी का नाम है क्या? इंसान है कोई, या फिर कोई इमारत है, संस्था है? तो इसीलिए पहला प्रश्न ये आता है। और अगली छवि जो आती है वह जब हम कहीं घूमने जाते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई खिलौना खरीदा, कोई किताब खरीदी, गाड़ी खरीदी, तो ये सब की छवि एक मन में आती है। तो एक बार फिर, मुस्कुराहट क्या है यह? किसी का नाम है क्या, या कोई इमारत है यह? समुद्र में लहर या हवा का झोंका है क्या? गाड़ी या पैसा, घूमने का मौका है क्या? किसी खिलौने का खेल या पुष्प की सुगंध है? किसी खिलौने का खेल या पुष्प की सुगंध है? आसमां में उड़ता पक्षी या किताब मन पसंद है? अब ये बात तो हो गई, जो हम खरीदते हैं चीजें, उन सबको देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। परंतु जब हम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच होते हैं तो भी एक छवि आती है मन में कि सभी के मुख पर मुस्कान रहती है। तो अगला जो लिखा है वो उसी को ध्यान में रखते हुए, पर्वत की ऊंचाई है क्या, महासागर की गहराई तो नहीं? क्योंकि आजकल हम महासागर में भी जा सकते हैं, पनडुब्बी है, डाइविंग रहती है। तो पर्वत की ऊंचाई है क्या, महासागर की गहराई तो नहीं?
शीत के रवि की गर्मी है क्या, या अनंत वृक्ष की छाया कहीं। अब कभी कभी ये सब प्राकृतिक सौंदर्य तो रहता है, परंतु जब कठिन परिस्थितियां आती है तो प्रकृति भी हमें मुस्कान नहीं देती, मुस्कुराहट नहीं आती है। तो जब पेट खाली हो या फिर तन पर वस्त्र ना हो, तो ऐसे समय पर हम ईश्वर को याद करते हैं, अपने माता पिता को याद करते हैं, और तब हमारे मुख पर मुस्कान आ जाती है। तो एक बार फिर से, पर्वत की ऊंचाई है क्या, महासागर की गहराई तो नहीं। शीत के रवि की गर्मी है क्या, या अनंत वृक्ष की छाया कहीं। भूख में मिली रोटी, या नरम नरम धोती, उस अल्लाह या ईश की प्रार्थना तो नहीं। वेदों की पढ़ाई है क्या, या मेहनत की वह पहली कमाई। माँ की ममता, या पिता का असीम प्रेम तो नहीं। तो इस प्रकार से अब प्रश्न तो कई हो गए हैं, छवियां भी आ गई है, परंतु जो प्रश्न था कि मुस्कुराहट का वास्तविक अर्थ क्या है, तो उसका उत्तर खोजने के लिए जब मैंने अपनी आंख बंद करी और अपने हृदय से पूछा, अपनी आत्मा से पूछा, तो एक आवाज आई, बताए सभी को यह कंठस्थ वाणी, मुस्कुराहट का अर्थ जाने हर प्रसन्न प्राणी। मन से निकली अनकही आवाज है यह, खुश मिजाजी झलकाती दिलों का ताज है यह। इस ओर से उस छोर तक फैली हर मुख का साज है यह। हाँ, मुस्कुराहट यही है, संसार को जोड़ता तार है यह, संसार को जोड़ता तार है यह। तो इस प्रकार से मुझे इसका उत्तर मिला कि जितनी सब चीज़ें हैं, छवियाँ हैं, लोग हैं, सभी चीज़ों को जोड़ता हुआ जो जोड़ता है वो है मुस्कुराहट। और इसी के साथ एक बार फिर मुस्कुराहट भरा अभिवादन आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बेहतरीन कविता, और उससे भी बेहतरीन आपका जो प्रस्तुतिकरण है, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया। और आपने जैसे समझाते हुए प्रस्तुत किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जितनी आप छोटी और अभी कॉलेज में ही हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, इसको आगे करती रहिए। तो हाँ, आपके बाद एक और भी अभी रह हैं, मानसी, जिनको मैंने हमारी साल्टा वाली मानसी को सोच करके मैं भूल गई उनको बुलाना। लेकिन हाँ, एक और भी अभी हमारे यहाँ वक्ता हैं। ठीक है, तो आपका कोई टिप्पणी है तो आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। अम, हाँ, अनूप जी और जगदीश जी। नहीं, वाणी की बहुत बहुत अच्छी कविता लगी। और जुड़े रहिए और कविता की पाठशाला से जुड़िए। वेलकम यू। ऋतु जी को मैं जानता हूँ, तो उनसे मुझे उनका मेरा नंबर उनसे मिल जाएगा आपको। बहुत बहुत अच्छा। अच्छी कविता वाणी की लगी, और बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रस्तुतिकरण उनका बहुत अच्छा था, और जो कविता में जो विचार आए वो भी बहुत अच्छे। बहुत सारी लिखते रहिए। तो अब हमारे जो शायद अब आखिरी वक्ता है, वो है मानसी मिश्रा। नमस्ते। अम तो मैं NYU जाती हूँ और वहाँ राजनीति पढ़ती हूँ, वकील बनना चाहती हूँ। अम और मैंने ये कविता लिखी, लेकिन सूषम बेदी की सड़क की लाए नामक कहानी से प्रेरित है। तो अम और इस कविता में दोनों माँ बाप और बच्चा का अम अ, परिप्रेक्ष्य दिखाया जाता है। तो उलझन या छलावा, पहचान है मेरी, राह है मेरी, जिंदगी है मेरी, तब जिम्मेदारी क्यों है आपकी। हमारा रास्ता लंबा है, उसमें कड़ा मुकाबला है, तो हम दुखद अनुभव तुम्हें क्यों सहने दे। बाघ जैसे पिंजरे में आप मुझे क्यों डालना चाहते हैं। ये धारियां जो मेरे शरीर पर लगाते हैं, वे उलझन ही पैदा करती है।
अपने हाथों से धारियां बुनते हैं ताकि तुम सीधी सादी हो। सबकी तरह सोचो, दिखो, जियो और हमेशा खुश रहो। पर मैं सब जैसी नहीं हूँ, ना तो मेरे लकीरें हैं। अगर मैं उन्हें बदल दूं तो मेरा क्या बचेगा। पिंजरा तुम्हारी रक्षा करता है, एक जैसी लकीरें तुम्हें छुपा देती है। इस जंगल में अलग दिखना खतरा है, तुम अलग क्यों बनना चाहती हो। पिंजरा ही मुझे नष्ट कर देता है, और जब लकीरें एक जैसी बन जाती है तब बाघ मिट जाता है। मैं वो बाघ बनना चाहती हूँ जिसकी लकीरें खुद को बदलने के लिए ना हो, अपने आप उभरने के लिए हो। अब अब गर्दन पर दबाव बढ़ता जाता है, हर एक रेखा में मेरी सांस अटकती है। साहसी बाघ हूं मैं, पर आपकी अपेक्षाओं में दम घुट रहा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा मानसी। ये आपने खुद लिखी है और वो भी एक रचना को देख करके। ये तो बहुत ही मतलब बढ़िया बात है कि आपने उनसे प्रेरणा लेकर के लिखी सड़क की लय से। तो बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी। I think सुषमा जी हमारे इस Mansi and Saisha have a lot in common thematically. They're talking about, both are talking about others' expectations, defying them and being who you are. So I appreciate both of you. बहुत सुंदर। तो ठीक है, तो अब हमारे सारे वक्ता ने अपना प्रस्तुतिकरण कर दिया है। तो अब हम Kusum, I know my students are not there, but I would like to represent their poems, three of my students. And they don't have to be part of the competition because they are not there reciting it, but I just want to share their work. So these are my beginning Hindi students. And I'm going to share this. We do a poetry section called Main Kaun Hu Main, and it's an open-ended poetry creation. So हम लिखते हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ, और फाइनल वर्जन जो दिस इज़ बिगिनिंग हिंदी, सो बहुत वोकेबलरी नहीं है उनके पास, हिंदी एंड उर्दू. So I'm going to share and read out these poems. So these are three different ones. I'll start here, then go here, and then maybe the last one. So the third poem that you see here is by a Japanese student who was a Japanese exchange student, and English, she was not comfortable with English. So she says, अंग्रेजी में अलग सी लगती हूँ, छुपी सी, छानी सी, रोके हुए पानी सी। क्या पता कब ये बांध टूटेगा और मेरा मन बहेगा। मेरी भाषा भी है बटी सी, यहाँ वहाँ, घर में, चौराहे पर। घर ना है, झरना है, पानी है, जापानी। बहने दो मुझे, बहने दो. That was her poem. Then I'm going to read my most favorite one, and then I'll show you a clip maybe. These two are poems written by my math students. The Urdu one is this. मैं मज़हर हूँ मुबहम दुनिया में, मजमुआ हूँ औरों का। मुझ में असीर है आलम, आसरा हूँ मैं ज़हन हूँ हकीकत से वाबस्ता। क्या मैं हिस्सा हूँ कायनात का, या ऊपर हूँ या साथ साथ? क्या सच है, कौन से मसनूई अल्फाज, पर यहाँ हूँ मैं अब। मजमुआ है ये जहाँ, जगह, मजमुआ है ये जगह, और आसा भी, मैंडलब्रोट की तरह।
एंड द फाइनल वन दैट आई रियली रियली लव। मैं कौन हूँ मैं, आज अलग कल अलग, इस तरह उस तरह, यहाँ वहाँ दोनों जहाँ, यहीं और कहीं खोजता हूँ, जैसे सूरज तारों को, ब्याद हिरन को, रोता दिल रातों को। मैं अपनी ही उंगलियों से बरसता हूँ, अमृत हूँ मैं और छलनी भी। एंड देन द लास्ट वन, दिस वाज फॉर माइग्रेशन। एक दो अढ़ाई, अढ़ाई समुंदर पार हवाई, दूर दूर तक पानी ही पानी, पास पास जवानी जवानी। रेत के बीच काम भी करे तो कैसे, पर पेट है नीच, आराम भी करे तो कैसे। मौसम अच्छा है, वाह 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 चंपा वाह वाह वाह, चमेली जिंदाबाद। खिलते हैं, आम चीकू जामुन भी मिलते हैं। दोस्त हैं सच्चे भी, पर शादी नहीं की, बच्चे भी। पापा हैं मुंबई में, माँ चल बसी। बहुत याद आती है उसका रोना, उसकी हंसी। उसकी अस्थियाँ जब जुहू में बहाई होंगी तो तैरते तैरते यहाँ तक आई होंगी। एक दो अढ़ाई, अढ़ाई समुंदर पार हवाई। बहुत अच्छी पोएम थी साई जी, जिंदाबाद। बहुत थैंक बढ़िया। थैंक यू। ये जो आपके स्टूडेंट की पोएम थी, एक बार फिर से शेयर कर सकते हैं? मैं जरा देखना चाह रहा था। और या खासकर वो जापानी बच्ची के जो स्टूडेंट है, वो बड़ी जापानी, अच्छा, इंटरेस्टिंग थी जी। आने वाली है जापानी, मुझे भी बहुत खूबसूरत लगी। हाँ, आपकी तो थी। हम्म या आपकी तो बहुत अच्छी है, मुझे लेट मी बहुत मजा आया। लेट मी फाइंड इट। उसने या जैसे शी सेज, जापानी को फिट किया ना वहां पे पानी के साथ, अमेजिंग। राइट। और भी और यहाँ वहां, मतलब जिस तरह उसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं अर्थ में। वो करेक्ट। वर्ड प्ले बड़ा अच्छा है, उस बच्ची का वर्ड बहुत प्ले अच्छा, बहुत ही बहुत बढ़िया। अच्छा है उसका। हाँ, हम दोनों, मतलब वो उसने वो कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, हम दोनों ने मिलके फिर बनाई थी। सोचा कि ये कैसे भी एक किस तरह कविता से हो क्या सकती कर है। सकते हैं। और सही। फ्री वर्स में भी, मतलब जब मैं मीटर में लिखती हूँ या मैं बांध के लिखती हूँ कविता, लेकिन जब फ्री वर्स में भी लिखती हूँ तो मैं बहुत इनकरेज करती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो राइम के साथ खेलें, मीटर के साथ खेले, रिदम के साथ खेले। तो ओके, आई रीड हर्स आउट टू यू। अंग्रेजी में अलग सी लगती हूँ, छुपी सी, छानी सी, रोके हुए पानी सी। क्या पता कब ये बांध टूटेगा और मेरा मन बहेगा। मेरी भाषा भी है बटी सी, यहाँ वहाँ, घर में, चौराहे पर। घर ना है, झरना है, पानी है, जापानी। बहुत बहने वाह दो, वाह, बहुत खूब। बहने दो। बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमारी एक और, मैं उषा कुमारी को देख रही हूँ, वो लग रहा है कि कविता के लिए ही आई हैं और उनका अभी नहीं हुआ। क्या ये सच है उषा जी? गुड 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 मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली वहां पे तो सुबह हो रहा होगा। एक्चुअली आप सब कंफर्टेबल हैं, मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप हिंदी में बात नहीं कर सकती, हमें समझ ही नहीं आएगा। क्यों? नहीं मतलब मुझे, नहीं, नहीं, सॉरी। हाँ तो कुसुम कुसुम कह एक्चुअली रही मैं कि हम सिर्फ हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी समझते नहीं हैं। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम नहीं नहीं सॉरी। नहीं, बोलिए आप, प्लीज प्लीज। मैं अपना परिचय दे सकती हूँ क्या? जी 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 जी। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम उषा कुमारी है। मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की। साथ ही मैं हिंदी हिंदी विशेष की छात्रा हूँ। साथ ही मुझे कविता लिखने में बहुत रुचि है और साथ ही मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी भी हैं। मैं अपने भाव और संवेदनाओं को जब किसी व्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकती, या अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को, तब मैं उन्हें अपने शब्दों से अपनी किताबों और कागजों में पिरो देती हूँ। तो मेरा जिससे मन भी हल्का हो जाता है और शांत हो जाता है। तो ऐसे मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी भी हैं। साथ में मैंने पत्रिकाओं में, अपने विभाग की पत्रिकाओं में डाली है अपनी कविता। साथ ही अलग अलग
कॉलेजेस में भी जाती हूँ मैं, पत्रिका उसमें पोएट्रीज में या कविता कॉम्पिटिशन्स में जाती हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने अपने विभाग की पत्रिका में काम भी किया था, साथ ही मैंने अपनी कविताएं भी दो चार डाली थी। तो मैं इधर कविता देने ही अपना लेने मतलब अपनी स्वागत कविता को स्वागत है आपका उषा। हाँ, आप तो आप सबके अपनी सामने। कविता सुना सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सुना सकती हूँ जी। हम्म। जी बस एक मिनट। आप डॉक्टर रेखा सेठी और हर्ष बाला की छात्रा हैं, हिंदी विभाग इंद्रप्रस्थ कॉलेज में। जी जी सर, जी सर, हाँ जी, जी सर। हम्म। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है उस रात। उस रात गलती मेरी थी, बेटी बनकर पैदा हुई इस धरती पर, वो गलती मेरी थी। उस रात कपड़े मैंने पूरे पहने थे, वो गलती मेरी थी। उस कमरे में मैं अकेली थी, मैंने ही कुछ कहा होगा, क्योंकि उस रात गलती मेरी थी। मैंने ही अपने जिस्म को बचाने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि उस रात गलती मेरी थी। कपड़े फटे मेरे, जिस्म पर चोटें लगी मुझे, क्योंकि उस रात गलती मेरी थी। इंसाफ मांगा, मिला नहीं, क्योंकि उस रात गलती मेरी थी। अब मैं लड़ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, ये दुनिया अपंग है, बेजान है, कुछ सुन और कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उस रात गलती मेरी थी। क्योंकि उस रात गलती मेरी थी। जी धन्यवाद। इतनी ही थी धन्यवाद। कविता। बहुत ही उदास कविता है, लेकिन बहुत ही सशक्त कविता है। बहुत अच्छा उषा। जी थैंक यू मैम। अम, तो और किसी के पास कोई कविता है तो कर सकते हैं, और फिर हम इस समाप्ति की ओर हैं। और अगर कोई भी, अच्छा, आप चाहें तो मैं भी एक कविता सुना सकती हूँ। थोड़ी उदास है, लेकिन सुना सकती हूँ। हाँ बिल्कुल सुनाइए कुसुम जी। तो ये माँ पर है, और मैंने अपनी माँ को खोया कुछ टाइम पहले। तो ये मैंने उनके ऊपर लिखा है। तो माँ फिर आओ, ये मेरी कविता का शीर्षक है। मैंने तुमसे कितनी लड़ाइयाँ की, क्योंकि मुझे लगता था तुम बहन को ज़्यादा चाहती थी। तुम्हारे सवालों से मैं परेशान रहती। खाना खाया, कैसी हो, मैं हर बार क्या कहती? बस कह देती ठीक हूँ, छोटा सा जवाब देकर बात खत्म कर देती। तुम मेरा इंतज़ार करती, मेरे लिए खीर बनाती, मैं आती, पहले प्यार से बातें होती, फिर झगड़े, हमारे संवादों में विवाद होता, क्योंकि हम अलग थे। तुम पूछती कब जा रही हो वापस, मैं चुप रहती, कभी नहीं बताती, तुम्हें तड़पने देती। तुम परफेक्ट नहीं थी, मैं भी नहीं, पर मैं चाहती थी काश तुम होती, पढ़ी लिखी, सजी धजी, गांव की नहीं, अवधि बोलती नहीं, दोस्तों के सामने शर्मिंदा करती नहीं। पर माँ फिर आओ, अवधि में बोलो, वही खाना बनाओ जिसकी मैंने कभी तारीफ नहीं की। पूछो क्या खाया, मैं सब बताऊंगी। फिर लड़ेंगे हम उन छोटी बातों पर जो कभी छोटी नहीं थी। तुम चली गई, आखिरी बार मुझसे मिली भी नहीं। मैं तुम्हें देख नहीं पाई, पर शायद तुम मुझे देख रही हो। माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, जैसी तुम थी बिल्कुल वैसे ही। बस। बहुत ही अच्छी कविता कुसुम जी। और माँ को आपने जो याद करके लिखा है, क्या प्रशंसा की जाए। विशेष रूप से जो बोलियां होती हैं, आपने जो अवधि की चर्चा की, तो बोलियों में जो मिठास है
वो बात आपने यहाँ माँ के बहाने और इस कविता में रख दी कि हम अपने मन की बात अपनी जो मातृभाषा होती, मातृ बोली होती है, उसी में कह पाते हैं। बहुत अच्छी कविता है, बहुत सारी बधाइयाँ। जगदीश जी, आपकी एक कविता कहीं पढ़ी थी कि वो कबीर की साखी जैसी माँ, कुछ आप ही की है ना वो? हाँ, हाँ, मेरी बहुत सुंदर उसका मैं कविता। लिंक डाल दूंगा, वो उसका वीडियो हाँ भी है, हाँ तो वो हाँ, बहुत आप सुंदर जरूर है। सुनिएगा। कल सुनाइए, कल मैंने कल सुन, हाँ, मातृ दिवस है। सुनाइए अभी। आप कुछ अभी लाइन सुना सुनाइए। सकते हैं इसके बारे चलिए आप सुना देते आप हैं। हाँ, अ, वो माँ पर ही कविता है, और आपने सुनी, ये जान करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ये कविताएं और बहुत इस तरह से खुद कि कभी लिखती नहीं हूँ, लेकिन पढ़ती उसका ज्यादा हूँ। आपने और वीडियो भी बनाया है ना व्योम जी? मैंने हाँ हाँ, वीडियो हाँ, इसमें अभी लखनऊ आकाशवाणी ने एक अलग से चैनल शुरू किया है। उसमें उन्होंने कुछ उनके कलाकारों ने गाया है, और ये 15 10 12 15 साल पहले एक और किसी कलाकार ने गाया था उसको, तो उन्होंने वीडियो भेजा था, बढ़िया है। तो वो कविता है, चर्चित है। ये माँ हम्म। कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ मीरा की पदावली सी, माँ है ललित रुबाई सी। वाह वाह। माँ वेदों की। आप म्यूट हो गए हैं जगदीश। म्यूट हो गया आपका, सुनाई नहीं दे रहा। मैं कविता निकाल लेता हूँ, बहुत कम याद रहती। एक एक सेकंड चाहिए। हम्म। हम्म, हाँ, चलो इसमें भी लाइए। वो था माँ कबीर की मूल चेतना, ये मैंने निकाला। हाँ हाँ। माँ गीता की ये वाणी। चलिए, मैं हाँ, तो माँ वेदों की मूल चेतना, माँ गीता की वाणी सी, माँ त्रिपिटक के सिद्ध सुत्त सी, लोकोत्तर कल्याणी सी, माँ द्वारे की तुलसी जैसी, माँ बरगद की छाया सी, माँ कविता की सहज वेदना, महाकाव्य की काया सी, माँ अषाढ़ की पहली वर्षा, सावन की पुरवाई सी, माँ वसंत की सुरभि सरीखी, बगिया की अमराई सी, माँ यमुना की श्याम लहर सी, रेवा की गहराई सी, रेवा है नर्मदा नदी। हाँ, नदी। माँ यमुना की श्याम लहर सी, रेवा की गहराई सी, माँ गंगा की निर्मल धारा, गोमुख की ऊंचाई सी, वाह वाह। माँ ममता का मान सरोवर, हिमगिर सा विश्वास है, माँ श्रद्धा की आदि शक्ति है, कावा है, कैलाश है, माँ धरती की हरी दूब सी, माँ केशर की क्यारी है, पूरी सृष्टि निछावर जिस पर, माँ की छवि ही न्यारी है, और माँ धरती के धैर्य सरीखी, माँ ममता की खान है, माँ की उपमा केवल माँ है, माँ सचमुच भगवान है, माँ सचमुच भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने धन्यवाद। और कविता सुनी। बहुत तो खूबसूरत कविता स्वप्ना जी, थी। आपने याद माँ दिला की दिया, नहीं तो माँ ये नहीं केवल माँ सुनाते। है, क्या बात है। माँ की उपमा माँ केवल दिवस माँ कल है। है। केवल माँ। जी तो जी। बहुत अच्छा कि हम लोग याद कर पा रहे हैं माँओं को। नहीं, बिल्कुल, और ये सबकी माँओं के लिए है, इसलिए सबका बहुत इस कविता को बहुत प्यार भी मिलता है, क्योंकि ये कविता लिखने बाद मेरी नहीं रहती, कवि की नहीं रहती,
सबकी सबकी हो होती जाती है। और माँ, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके माँ न हो। हम्म। तो माँ से बड़ा और कुछ होता ही नहीं। बहुत बहुत कल धन्यवाद। कल मदर्स डे भी है, तो सबको बधाई। कल मदर्स डे है। और विशेष बात यह है कि इस कार्यक्रम में जितने रंग की कविताएं सुनी गई, भाई, मुक्त छंद की, छंद की, उल्लाला छंद का भी चर्चा हुआ, और हाँ, वो पुरानी चर्चा से हुई थी। पुरानी कविता हुई। और हाँ। उतनी ही बार अनूप जी ने अपने वस्त्र भी बदले। सर, वो मुझे क्या आप समझ सकते हैं कि मुझे कहीं जाना है अभी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ये आपने हर कविता के साथ में सब पे नजर रहती है। नई सब ड्रेस मैंने सोचा जानते कि आपने टैग में नोटिस है। किया? नहीं, मुझे अभी निकलना है, मैं थोड़ा सा माफी तो चाहूंगा, मैं जैक जैकेट पहन के। अब इसको खत्म हाँ, करते हैं, क्योंकि हाँ, हमारा भी हो चुका है जी, साल्टा का हाँ, पूरा कार्यक्रम। बिल्कुल नहीं नहीं, मैं 1 मिनट के लिए राजीव जी को और दिव्या जी को भी बोलूंगी कि वो इसको जी समापन जी कर दें, और हम इसका जो निष्कर्ष है, जो भी हमारे जो कविता के तो हम आप लोगों को ईमेल के जरिए बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे। जी जी जी। तो कुसुम, आप ये तो सब रिकॉर्ड हुआ है ना? सब कुछ बिल्कुल रिकॉर्ड। बिल्कुल। तो ठीक है, तो अब मैं राजीव जी और दिव्या जी से बोलूंगी कि आप धन्यवाद कर सकते हैं सबका, और हम आज समापन कर रहे हैं अपने साल्टा के कॉन्फ्रेंस का पूरा। तो तो तुम्हारे बारे में कुछ भी लिखो, तो वो कह रही थी कि मुझे बहुत बंधा हुआ लगता है अंग्रेजी में, तो वहां से हमने शुरू किया डिस्कशन। और नहीं, उसकी कविता कविता बहुत अच्छी थी। उसको कहिए हाइकू कविताएं भी लिखे। हाँ हाँ हाँ। मैं हाइकू पर, हम लोगों का बहुत बड़ा काम है। अच्छा तो अच्छा। हाइकू हाँ। हाइकू पर, हाइकू हिंदुस्तान